Hello friends, so we are again to my video lecture. Now in the last video lecture I have taught you the basics of polygons. I told you the basics of polygons, how to find out the number of diagonals, the number of triangles, and also the sum of the interior angles of a convex polygon or a convex quadrilateral, or the sum of the exterior angle of a convex quadrilateral or a convex polygon. So friends, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि एक पॉलीगन के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, कितने उसके अंदर डायगोनल्स होते हैं, कितने उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है. आज के लेक्चर में फ्रेंड्स से हम लोग बात करेंगे बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स की. देखिए, जो भी आपके सवाल आते हैं किसी भी एग्जाम में, कैट में, सीजीएल में, या फिर इवन बेसिक लेवल पे, तो ज़्यादातर जो बात होती है वो क्वाड्रिलेटरल्स की ही होती है, और ज़्यादातर होती है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की. हमें पता है कि हमारे कोर्स में मैक्सिमम पार्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स का है. तो आज हम बेसिक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से उठेंगे. पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे. So friends, in today's video, we are going to talk about convex quadrilaters. Convex quadrilaters are the most important part of our geometry preparation. In this video, we are going to see that, the basics of it. Now the first thing, I am just drawing a quadrilateral here. Now suppose this is a quadrilateral, okay? I am not saying that it is a parallelogram. I am not saying that it is a rhombus. I am not saying anything. I am just saying that this is a quadrilateral. Maybe all the four sides of its quadrilateral are equal, maybe all of them are different, but it is an enclosed figure consisting of four lines. Now I am going to draw its diagonals. I am going to mark it as A, B, C and D. So this is a quadrilateral, friends. Okay. Now if it is being told to me that I have to find out the area of this quadrilateral, तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है फ्रेंड्स. मैंने ये नहीं कहा कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है. मैंने कुछ भी नहीं कहा है. मैंने सिंपली कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक ऐसा इनक्लोज्ड फिगर है जिसको चार स्ट्रेट लाइंस में इनक्लोज कर रखा है. अब अगर हमको पता करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, तो ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो इसमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ की है AC. AC is the diagonal of this quadrilateral, and from the other vertices except A and C of this quadrilateral, I am going to draw the two perpendiculars on this diagonal AC. यानी कि इस A और C पॉइंट के अलावा जितने बचे हुए वर्टिसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस डायगोनल AC पे. तो ड्रॉ करते हैं. मैंने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. इसको मैं मार्क करता हूँ D डैश, इसको मैं मार्क करता हूँ B डैश. सो फ्रेंड्स, these are the two perpendiculars I drawn. This point I marked as D dash, and this base is marked as BB dash. So this is BB dash, this is DD dash. Now if I have to find out the area of this quadrilateral ABCD, area, हमको एरिया निकालना है. क्वाड्रिलेटरल को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं. तो कैसे निकालेंगे? आपको नजर आ रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल से बना है. कौन कौन से ट्राइंगल है? ACD ट्राइंगल है, ACB ट्राइंगल. यानी फ्रेंड्स, it is quite visible to us that this quadrilateral is formed by the mixture of two triangles. First triangle is ACD and the second triangle is ACB. So we can write it as ACD plus ACB. Obviously this is area of ACD and this is area of ACB. यानी एरिया के लिए लिख रहा हूं मैं. तो ACD का एरिया लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट. यानी ये ACD ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू इसका बेस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से. हम लोग तो देखते आ रहे, तो 1/2 इंटू AC इंटू B डैश D. ये तो ACD का हो गया. ACB का कितना होगा? Obviously 1/2 base is AC into height this is what? This is BB dash. Oh, one thing I'm sorry friends, this is not B dash D, it is DD dash. I'm really sorry. The height of this triangle ACD will come out as DD dash. I just missed it. ठीक है, तो ये DD डैश मैंने गलती से लिख दिया था. अब ACB का एरिया में क्या लिखूंगा? 1/2 बेस क्या है? AC है अगेन, इनटू हाइट क्या है? BB डैश. तो एक तो ये तरीका हो गया, फॉर्मूला नंबर 1. एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है, ये हर क्वाड्रिलेटरल पे एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो. सो फ्रेंड्स, व्हाट राइट नाउ आई एम टेलिंग टू यू, this thing will be applicable on all types of quadrilaterals, be it a parallelogram, rectangle, square, trapezium, anything. Okay,
So this is the first formula. I drew a diagonal, and on that diagonal from the rest of the two vertices I drove two perpendiculars and I added the sum of the two triangles form. यानी वाले मैंने क्या किया कि एक डायगोनल ड्रॉ की, उस डायगोनल पे बचे हुए दो वर्टिसेस से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, उसका जो दो ट्रायंगल्स बन रहे थे उनका एरिया निकाल के जोड़ दिया, हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। ये पहला फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये फॉर्मूले हर तरीके के क्वाड्रिलेटर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब इसे मिटाया जाए। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया है, पूरा फिगर मिटाने की जरूरत नहीं है सॉरी, पहले मैं इसके लिए डस्टर खरीद के लाया भी था, ब्लैक बोर्ड जो रब करने वाला होता है, वो भी अजीब सही निकला। दो लेके आ चुका हूँ, दो खराब हो चुके, तो मैंने कहा चलो कपड़ा ही इस्तेमाल कर लेते हैं जब वो काम नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि अगेन, ठीक है, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्मूला 2। देखिए, जब मैं पैरेललोग्राम्स डिस्कस करूंगा तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, उसका एरिया निकालने का, जो उसमें एप्लीकेबल होगा। रोम्बस में एक ऐसा मैं बताऊंगा, उसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेपेजियम में मैं आपको फॉर्मूला एरिया निकालने का एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो ट्रेपेजियम में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग एरियाज अलग अलग में क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये दो फॉर्मूले, पहला तो फॉर्मूला नंबर 1 बताया, और ये जो फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूँ, ये हर क्वाड्रिलेटरल में एप्लीकेबल है। So friends, what I am telling you that when I will be dealing with parallelograms, I will tell you a separate area to find out the separate formula to find out the area of the parallelogram. In the case of square rectangle, you already know. I will again discuss it once. In the case of say rhombus, I will tell you one more formula to find out the area of the rhombus, and in the case of trapezium, I will tell you one more formula to find out the area. But these two formulas, that is formula number 1 and this formula that I am going to discuss now, formula number 2, these will be applicable in all sides of triangle. In all sorts of quadrilaterals. So suppose this is center point is O, okay, and I suppose this angle is theta 1, this angle is theta 2. This is my simple assumption. What I have I have done that this center point is O, this angle I supposed as theta 1, this angle is supposed as theta 2. यानी फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों डायगोनल्स का O है, इसको थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 2 मान लिया, सिंपली, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होना चाहिए 1/2 इंटू AC इंटू DB इंटू साइन थीटा 1, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला लिखा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला आई रोट फॉर द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, इसी के पैरेलल 1/2 into AC into DB into sin theta 2. This is the second formula. ये एक फॉर्मूला लिखा, ये दूसरा फॉर्मूला लिखा, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर हैं? Are these two formulas equal? Think for a second. Just pause the video and think for a second. Okay? These two are equal. No doubt these two are equal. Why these two are equal? Just have a look at this figure. इस फिगर को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे ये जो थीटा 1 एंगल है, ये जो थीटा 2 एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन DB पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस थीटा 1 एंगल एंड थीटा 2 एंगल आर फॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन DB. So suppose I draw this line here DB, and this is theta 1 plus theta 2. So what does this theta 1 plus theta 2 means? 180 डिग्री। यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मैंने अलग से ड्रॉ की DB और उस पे थीटा 1 plus थीटा 2 देखूं तो 180 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इस स्ट्रेट लाइन पे भी थीटा 1 plus थीटा 2 180 डिग्री है। यानी कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा 1 डिग्री। दैट मींस इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू, टेक थीटा 1 दैट साइड, 180 डिग्री माइनस थीटा 1। आई एम गोइंग टू प्लेस दिस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा 1 in this equation. Okay, in this equation. So when I will place it in this equation, what will this become? This will become sine of 180 degree minus theta 1. Okay, I have just replaced the value of theta 2 from this equation into this equation, the second equation. And what will this sine 180 minus theta 1 comes? What is sine 180 minus theta 1? Sine 180 minus theta 1 is considered to be the second quadrant.
देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. If you know this, it's okay. If you don't know this, we are going to discuss this in trigonometry. This is a part of trigonometry. यानी कि फ्रेंड्स, जब मैं थीटा 2 की जगह 180 माइनस थीटा 1 रखूंगा तो ये जो साइन 180 माइनस थीटा 1 है ये अपने आप साइन थीटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। ये साइन थीटा 1 में अपने आप क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये 180 माइनस थीटा 1 है ये 180 डिग्री से कम है, तो अगर ये 180 डिग्री से कम है तो ये कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं? ये एक्सेस बना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्या होता है? 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्या होता है? 180 से 270 डिग्री, फोर्थ क्या होता है? 270 से 360 डिग्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। तो इस बेसिस पे मैंने प्रूव कर लिया कि ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली अलग अलग नहीं है, सेम है। इसको आप साइन थीटा 2 भी लिख सकते हो, इसको आप साइन थीटा 1 भी लिख सकते हो, बेसिकली दोनों सेम ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया सर क्वाड्रिलेटरल से। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेकंड फार्मूला, द सेकंड जनरल फार्मूला व्हिच इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन क्वाड्रिलेटरल। अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। कैसे प्रूफ होता है फार्मूला, मतलब ये फार्मूला सही है गलत है, हम कैसे जानेंगे? देखते हैं कैसे जानेंगे। क्या इस एंगल को मैं थीटा 2 लिख सकता हूँ? ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ये ओसी लाइन, एसी लाइन और डीबी लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे। और सिमिलरली ये एंगल क्या होगा? थीटा 1, क्योंकि ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, so friends, this theta 2 is equal to theta 2. Why? Because when two lines intersect each other, vertical opposite angles are formed, and similarly by the same logic theta 1 is equal to theta 1. This we have already discussed in our initial geometry videos. So on the basis of this, if I have to calculate the area of quadrilateral ABCD, I have to add the individual areas of triangle AOB, triangle BOC, triangle COD and triangle DOA. यानी फ्रेंड्स, अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है तो जो 4 अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है? AOB बन रहा है, क्योंकि बीच के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने O माना है। दूसरा क्या बन रहा है? BOC बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है? COD बन रहा है। चौथा क्या बन रहा है? DOA बन रहा है। तो अगर मैं इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। जोड़ते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको ये अंडरस्टूड है कि ये मैं एरिया लिख रहा हूं, मतलब दिस इज अंडरस्टूड टू दिस इज एरिया, दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COD प्लस ट्रायंगल DOA। यानी जो अलग अलग ट्रायंगल्स बने थे सबको एरिया को मैंने जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो द डिफरेंट 4 ट्रायंगल्स फॉर्म, ये जो अलग अलग 4 ट्रायंगल्स बने थे इनके मैंने एरिया को जोड़ दिया है। तो AOB का एरिया क्या होगा? AOB का एरिया AO इंटू OB, इसका एरिया लिख रहा हूं मैं 1/2 AO OB साइन थीटा 1। ये फॉर्मूला आप पहले देख चुके हैं। I wrote down the area of triangle AOB 1/2 AO into OB into sin theta 1. I suppose you know from where this formula comes. I have discussed this formula in my triangle lecture. Next comes triangle BOC. This triangle. By the same logic, उसी logic से मैं लिख रहा हूँ BO into OC sin theta 2. Similarly, COD का क्या लिखूंगा? CO into OD साइन थीटा 1 प्लस चौथा DO का क्या लिखूंगा? 1/2 DO इंटू OA साइन थीटा 2। So friends, this was one of the formulas of triangle that I discussed with you, and by using that formula of calculating the area of a triangle, I wrote down this equation as something like this. तो उस फॉर्मूले को जो मैंने आपको बताया था जिसकी मदद से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, उसकी मदद से मैंने 4 अलग अलग ट्राइंगल बना के इनके एरिया को यहाँ पे ऐड करके लिखा है। और इससे मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ? कुछ इस फॉर्म में पहुंचना चाह रहा हूँ कि मैंने इस एरिया के ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लेके आया। सबसे जरूरी बात ये होती है कि हमको ये जानना है कहाँ से लेके आए, जितना हम जान सके। अभी आगे आएंगे तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड इक्वेशंस भी आएंगे मेरे सामने, तो सबके प्रूफ तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितने जरूरी हैं, जितने समझ सको आप उतने समझ लो। ठीक है,
तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, आप इस इक्वेशन को और इसको जोड़ दो। ये टर्म है 1/2 AO OB sin theta 1, add this to 1/2 DO OA sin theta 2. I am adding this, okay, this and this, so I will get 1/2 AO and OA is the same thing. You can write it as AO also, so I am going to take AO common, and in bracket I am going to write OB plus OD, and outside I am going to write sin theta 1. Now here it is sin theta 1, here it is sin theta 2. It doesn't matter to me whether it is sin theta 1 or sin theta 2. यानी फ्रेंड्स मैंने जब इन दोनों टर्म्स को जोड़ा, किस टर्म्स को जोड़ा, 1/2 AO into OB sin theta 1 को और 1/2 DO into AO sin theta 2 को, तो यार देखो AO तो कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लिया, 1/2 कॉमन दिख रहा है बाहर ले लिया, लेकिन अंदर क्या है, OB है और यहाँ पे क्या है, DO है, तो OB और DO लिख दिया, इसको OD लिख दिया मैंने, आप इसको DO भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे हुए तो एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता, इसलिए अलग लिख देता हूँ। sin theta 1 ये है, sin theta 2 ये है, यहाँ मैंने बाहर कॉमन में sin theta 1 लिख दिया, इसको मैं sin theta 2 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यार आपको पता है कि sin theta 1 और sin theta 2 बराबर ही आना है, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको लॉजिक कि ये theta 1 plus theta 2 तो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो theta 2 कितना हो जाएगा, 180 minus theta 1, तो sin theta 1 बराबर sin theta 2 हो जाएगा, क्योंकि theta 2 की जगह आप 180 minus theta 1 पुट करोगे तो वो sin theta 1 ही बन जाएगा। So friends, I am very much sure on this fact that why the sin theta 1 is equals to sin theta 2. You can write here sin theta 1 also and sin theta 2 also, because sin theta 1 is equals to sin theta 2. Why it is equal? Because theta 1 plus theta 2 is equals to 180 degree. So theta will come out as 180 minus theta 1, and when you are going to input it in sin theta 2, you will get sin theta 1. Okay? नहीं समझ में आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के हमें ये मिल गया है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ये OC है, ये CO है, एक ही बात है, इसको OC लिख देता हूं, एक ही चीज है, लिख देता 1/2 OC कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक तो BO आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, sin theta 2 या sin theta 1, कुछ भी लिख दो, sin theta 2 लिख देता हूं। So friends, now I am adding which two terms? I am adding 1/2 BO into OC sin theta 2 plus 1/2 OC into OD sin theta 1. In this 1/2 and OC are common in both the terms, so I put it outside. In the bracket inside I put BO plus OD, and outside I can put sin theta 2 also and sin theta 1 also. So I put sin theta 2 outside. What is this BO plus OD? And what is this OB plus DO? It is the same thing. This OB plus DO is BO plus OD is same thing. Okay, it's just the notation of the line. Okay. Now, friends, I think I am missing something here. BO, OC, okay. OB plus OD, it becomes BD. This also becomes BD. So what I am going to do, I am going to write in place of this OB plus DO and OB plus DO, I am going to write BD. So what I am writing here, I am writing here as BD. Simple. And here also I am writing as BD. तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने कि मुझे दिख रहा है यार कि ये दोनों लाइन टर्म्स, DO कह लो या OD कह लो, इसको OB कह लो या BO कह लो, जब दोनों को जोड़ देंगे तो तुमको BD मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी BD आ गया, यहाँ पे भी BD आ गया, ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं, इन दो इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं तो 1/2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, sin theta 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, BD कॉमन दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग, आई एम सीइंग दैट इन दीस टू टर्म्स 1/2 is common, BD is common, sin theta 2 is common. So I am going to take these terms as common. It will become 1/2 sin theta 2, then BD, and then in bracket I will come AO from here and OC from here. So ब्रैकेट में क्या मिल गया, AO plus OC। ये AO plus OC क्या बन जाएगा, पूरी लाइन AC, AO plus OC is पूरी लाइन AC। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कुछ ऐसा 1/2 BD, ये क्या बन गया, AO plus OC, AC बन गया, ये क्या बन गया, sin theta 2 बन गया। तो क्या आप यहाँ पहुंच गए, BD into AC, ये DB लिखा था, इस BD को आप DB भी लिख सकते हो, BD लिखो DB लिखो, एक ही बात है, लाइन की नोटेशन है।
ठीक है। तो 1/2 AC इंटू डी बी साइन थीटा 2 ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से, और इस थीटा 2 की जगह आप थीटा 1 भी पुट कर सकते हो। क्यों पुट कर सकते हो, लॉजिक में आपको बता चुका हूँ। So friends, after taking common, I saw that this is AO plus OC becomes AC the full line. So I wrote here AC. So I got 1/2. Either you write as BD, either you write as DB. It is the notation of the line. You can write anything. So 1/2 DB into AC into sin theta 2. And this sin theta 2 is equals to sin theta 1. So obviously, both of these equations will hold good. Hence proved. Okay friends? I hope this is clear to you. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला केस देखेंगे अपना। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम लोगों ने जो हमारा सबसे दो बेसिक फॉर्मूले थे उनको देखा और उनके प्रूफ को समझा कि ये कैसे प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, दूसरा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रूविंग के साथ समझाया, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया जाता है तो वो किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को तोड़ा जाता है। और दूसरी बात, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्योंकि जब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाता है किताबों में तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। सो फ्रेंड्स, टिल नाउ आई हैव जस्ट टेकन अप 2 formulas, but those 2 formulas are going to help you a lot, especially the second formula, because in the second formula I told you the method of breaking a quadrilateral into 4 parts, and by breaking that quadrilateral into 4 parts you are going to learn the approach, how to approach while solving a question of quadrilaterals. Okay friends, and also in the books the direct formula like that is written. In some books when that formula is also not written. So when the formula directly comes in front of you, many of us are not clear that why this formula is there in this manner, but now I'm sure that many of you would be clear on the fact that how this formula came. अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसान चीजें। पहले तो यार अभी तक तो मैंने आपको 2 ऐसे फॉर्मूले बताए जो हर क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर क्या है। यार हम सबको पता है स्क्वायर क्या है, ठीक है, बट फिर भी एक अपने जनरल उसके लिए एक फॉर्मेलिटी के लिए कह लीजिए कि अगर कोई बहुत ही बिगिनर हो जिसको स्क्वायर ना पता हो, उसके लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए दिस इज स्क्वायर, सपोज दिस इज स्क्वायर, सो व्हाट विल बी इट्स प्रॉपर्टी, ए ए ए ए। दैट मींस ये लेंथ भी ए है, 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 यानी चारों लेंथ्स बराबर है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, एक स्क्वायर की। फिर ये आपने डायगोनल खींची, ये आपने डायगोनल खींची, मार्क कर ले रहा हूं उसको, ए बी सी डी। जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए लिख दे रहा हूं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकेंड, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। ये स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी, सारे एंगल्स 90, सारे साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो ए बी सॉरी द डायगोनल इज ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, द डायगोनल्स आर इक्वल। थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉरी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट रही हैं, प्लस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, दिस साइड AC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये जो साइड AC है ये
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये ए बी सी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, आपका जो हाइपोटेनस होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट होता है। तो एक और प्रॉपर्टी, तो ये स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल्स भी देख लेते हैं शॉर्ट में, कि बेसिकली ये रेक्टेंगल किस चिड़िया का नाम है। सिंपल है ये भी, खींच दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि सारी साइड्स बराबर हैं। इस फिगर में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो ए बी साइड है ये ए डी और बी सी से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली यार यहाँ पे मैंने बताया नहीं, पर स्क्वायर में एक चीज तो क्लियर ही कि यार अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट इज एविडेंट टू यू, इफ दिस इज 90 दिस इज 90, then obviously these two sides are parallel to each other and these two sides are parallel to each other. Similarly, in a rectangle, the opposite sides are parallel to each other. That is, AB is parallel to CD. लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पता ही होगा यार आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें। BC is parallel to AD, तो opposite sides एक दूसरे के parallel हैं। ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है और ये 90 दिख रहा है। ये चारों एंगल्स आपको 90 दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये लेंथ आपको बड़ी लग रही है, मान लीजिए ये L है। ये लेंथ आपको छोटी लग रही है, मान लीजिए स्मॉल x है। इसको स्मॉल L माना है आपने और इसको स्मॉल x माना है आपने, तो ये भी स्मॉल L हो जाएगा, ये भी स्मॉल x हो जाएगा। तो ये जो डायगोनल है ये क्या हो जाएगी? डायगोनल विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सेम लॉजिक, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर है। सो बाय दिस लॉजिक वी कैन से दैट AC and BD diagonals are equals to under root of L square plus x square, where small l is the length of AB, small x is the length of BC. Okay. Now friends, here in this figure you can see that these two diagonals are equal to each other. Okay. These two diagonals are equal in length. This is also true. I'm just speaking and I'm not writing it. Okay. You can just revive the video and see it. These two diagonals are equals to each other. Okay. These two diagonals intersect each other, or you can say bisect each other. The diagonals bisect each other. That is this point O. If I suppose, then this point O is the midpoint of AC, and this point O is also the midpoint of BD. So the diagonals AB and so the diagonals AC and BD bisect each other. Okay. Now, can you say that the intersection of these two diagonals is a 90 degree angle? So, can you say that this is a 90 degree angle, or this is a 90 degree angle, or this is a 90, or this is a 90? No, you cannot say that. It is not mandatory that it is a 90 degree angle. So, you cannot say that the diagonals are perpendicular to each other. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो diagonals जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां पे 90 डिग्री एंगल बना रही, नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। हम ये तो कह सकते हैं कि जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो आधा आधा में बांट रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जहां पे बाइसेक्ट कर रही है वो एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही है। यानी कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, यू कैन से दैट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट यू कैन नेवर से दैट अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। यानी हम ये कभी नहीं बोल सकते कि जो एक रेक्टेंगल है, कोई पर्टिकुलर फिगर अगर रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर भी है। यानी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो रेक्टेंगल के पास है, पर रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जो स्क्वायर के पास है। एक और ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो स्क्वायर के पास है पर रेक्टेंगल के पास नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको ये लाइन दिख रही है AC, ठीक है। अब वी आर सीइंग वन मोर प्रॉपर्टी which is present in the square but which is not present in the rectangle. What is that property? That property is that you can see this line segment AC. Now you can see that this line segment AC, particularly you can say that it bisects angle C. That is, this angle will be 45 degree. This angle will also be 45 degree. This angle will be 45 degree. This will be 45, 45, 45, 45, 45. This means you can say that every diagonal is exactly bisecting two 90 degree angles. That is, this diagonal AC, the C end is bisecting angle C into two equal halves, 45, 45. Similarly, this angle AC, the A end is bisecting angle A into two equal halves, 45, 45. Similarly, this end B of the diagonal BD is bisecting this angle B into two halves, 45, 45, and same goes for D.
the diagonal BD at the D end is bisecting angle D into two equal halves 45 degree and 45 degree। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो AC diagonal है BD diagonal है C end पे ये C एंगल को 45 डिग्री में बांट रही है। सिमिलरली CA में A end पे ये A एंगल को 45 में बांट रही है। सिमिलरली BD diagonal B end पे B एंगल को 45 में बांट रही है। और सिमिलरली यही BD diagonal D एंगल पे D एंगल को 45 में बांट रही है। क्या ये यहाँ पे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो AC लाइन है ये C एंड पे C एंगल को 45 में बांट रही है, हम नहीं कह सकते। So just extending this, we cannot say that in a rectangle a diagonal at the C end is bisecting this angle C into 45. It is not mandatory. It will be mandatory when this rectangle becomes a square, but we never know that whether a rectangle is a square. यानी कि ये जो चीज है अगर ये AC C को बराबर दो भागों में बांटेगी तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ठीक है, तो हम ये 100% एक रेक्टेंगल नहीं बोल सकते कि जो डायगोनल है वो किसी भी पर्टिकुलर वर्टिस के एंगल को बराबर में बांटे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक और हमने प्रॉपर्टी देखी जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में कॉमन नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? भाई साइड्स इक्वल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो डायगोनल्स हैं एक में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे में जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये कुछ चीजें देखी हैं। अब हम लोग एक ऐसी चीज देखते हैं, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एप्लीकेशन है। मैंने अभी आपको सर्कल्स नहीं बताया, बट फिर भी एक छोटी सी चीज मैं आपकी सर्कल्स के आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत जरूरी चीज है इसके एप्लीकेशन को देखने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में बताया है, तो एक एप्लीकेशन देखना बनता है। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। Now I am going to tell you a small application in terms of question. It is a very small application. It is not important that you are going to get a direct question on this thing, but it will be useful to you. Suppose if the question in front of me is that there is a circle, okay, and the diameter, okay, just listen to this thing, that the diameter of the circle is suppose say 10 meter. Suppose the diameter of the circle is supposed to be 10 meter. So what will be the rectangle that can be inscribed in this circle having maximum area? Okay, what can be the rectangle that can be inscribed in this circle having maximum area? मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमारे पास एक सर्कल है, सिंपल सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल में पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। मान लीजिए सर्कल का जो डायमीटर है वो d मीटर है, 10 मीटर से d डिनोट्स डायमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इस सर्कल के अंदर मुझे एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, और वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो, ठीक है, वो रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का हो कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, हमको इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन, जो उसका एक साइड है, वो बताना है, बशर्ते कि जो रेक्टेंगल हम इसके अंदर स्क्राइब कर रहे हैं उसका एरिया सबसे बड़ा हो, मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो देखते हैं बना के। मान लीजिए मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि उसकी साइड क्या होगी, ठीक है, तो अब भाई साइड के दो तरीके बन जाते हैं। ठीक है, अगर लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ छोटी है, ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ you can say that this question is only one faced, it's not total, because in a rectangle the two sides are of different length. The length can be bigger than breadth, the breadth can also be bigger than the length. So there is a fact, friends, you need to learn this fact. For example, if there is a number, okay, if there is a number x plus y is equals to 10, ठीक है, अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं कि आपके पास एक नंबर है जिसमें x plus y is equals to 10 लिखा है, ये अलजेब्रा का एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x और y है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर ये जो x और y है पॉजिटिव इंटीजर्स है, और मैं आपसे पूछूं कि x into y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी,
क्वेश्चन क्या है, दिस x plus y is equals to 10, x and y are positive integers, and if my question to you is that what will be the maximum possible value of x into y, then what will be your answer? I have already given you the condition that this x and y are positive integers. तो हम ये भी कह सकते हैं इसको 1 मान ले, इसको 9 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 8 मान ले, तो 1 into 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 into 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. हमें मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है, we have to calculate the maximum possible, so I am going to support it as 5, this also as 5. So what will be the product become? 25, and 25 will be the maximum value of x, y. So friends, एक केस हम 1 9 मान सकते हैं, 2 8 मान सकते हैं, 5 5 भी मान सकते हैं. आप देखेंगे जब हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमको ये पता है, ठीक है, जब हमको ये पता है कि अगर हमें किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है या किसी भी दो चीजों को प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, तो वो जो दो चीजें हैं उनकी वैल्यू को बराबर कर दो. मैंने आपसे यहाँ को क्वेश्चन दिया, what did I learn from this fact? I learned from this condition that if we are multiplying two things and if we have to maximize the value of that multiplied product, then those two individual things have to be equal to each other. This is the point. So in this case, x and y was there. In this case, L and B is there. What is the area of the rectangle? L into B. So in order for this L into B to be a maximum, this L and B should be equal to each other, mostly equal to each other. So in this case, I have not to form a rectangle inside it, I have to form a square inside it, because rectangle is also a square. Sorry, a square is also a rectangle. So even if we are going to calculate for a square, it will satisfy for the condition of the rectangle. यानी फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल कहा गया था, पर अगर हम एक स्क्वायर भी बना दें एक सर्कल के अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है. तो अगर मान लीजिए हमने स्क्वायर बना दिया, अब ऑब्वियस सी बात है जो डायमीटर है इसके सेंटर से क्रॉस करता हुआ इस स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा. यानी जो 10 डायमीटर निकल के आया था, ये वो क्या है, इस स्क्वायर का डायगोनल है. और डायगोनल क्या होगा, अगर आप इस स्क्वायर की एक लेंथ को a मानते हैं तो डायगोनल होगा a√2, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 10/√2. इसको आप सॉल्व कर लीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिल जाएगा 5√2. यानी आपको उस एक रेक्टेंगल की लेंथ क्या मिली, 5√2. So friends, what I have done, I have not considered a rectangle inside the circle, I considered a square, because square is also sort of rectangle and the length of each side of the square is same. So when we are going to multiply it, we are going to get the maximum product. And by using that logic, I constructed a square inside the circle, and the diagonal of the square will be the diameter of the circle. Why it is that I will be dealing in circles. So what will be the diagonal of this square? This one, it is 10, and if one length of the square is a, the diagonal will be a√2, and that a√2 will be equals to 10. So a becomes 10/√2, so it becomes 5√2. Okay friends, so what was our question? What is the length of that rectangle, side of maximum possible? In case of maximum possible area, यानी maximum possible area के केस में उस एक रेक्टेंगल की साइड क्या होगी, तो यहाँ पे हमने उस रेक्टेंगल को क्या मान लिया, स्क्वायर मान लिया, एक साइड का निकल के आ गई 5√2. ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको दिमाग में रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके बाद आपके साथ ये जो दो कंप्लीट करने के बाद पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेपेजियम के बारे में. ठीक है, मैं पूरा आपके साथ ट्रेपेजियम को डिस्कस करूंगा. ठीक है, ट्रेपेजियम बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा काइट्स के बारे में. ठीक है, काइट्स के बारे में बताऊंगा, और काइट्स के बारे में बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में. ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो पॉलीगन्स है वो खत्म हो जाएगा. और उसके बाद एक चीज और है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे दिमाग से निकल गया. देखिए इसमें कितना टाइम बचा हुआ है. चलिए फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम लोग ट्रेपेजियम को एटलीस्ट शुरू तो कर ही सकते हैं. ठीक है, तो friends, this I have drawn in front of you a quadrilateral. You can see it is a quadrilateral ABCD, 4 straight lines enclosing a figure, enclosing an area. So this is a quadrilateral, and what I am giving to you, I am giving to you that this AB is parallel to CD. This line is parallel to this line, and obviously as you can see in the figure, this AD is not parallel to BC. So friends, क्या कंडीशन दी है मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में? आपको कंडीशन ये दी कि जो AD लाइन है ये CD के पैरेलल है. लेकिन ऑब्वियस बात आप फिगर देख के कह सकते हैं कि जो AD लाइन है ये BC के पैरेलल नहीं है. ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, हाइट
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हाइट, ये h है, ठीक है। और अगर मुझसे मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, तो आप एरिया इसका कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, 1/2 AB plus CD into H. So friends, I told you that this is a trapezium ABCD. AB is parallel to CD. AD and BC are obviously not parallel to each other, and this is height H. Height, that is the perpendicular distance between this AB and CD, and obviously the perpendicular distance for all lengths between AB and CD will be equal because these two are parallel lines. So in that case, what will be the area of this quadrilateral ABCD? It will be 1/2 into sum of these parallel sides, that is AB plus CD, into height, that is the distance between them. तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया. नाउ ऑब्वियसली वी विल कम टू अवर मोस्ट एविडेंट पार्ट. व्हाट इज दैट पार्ट? द प्रूफ ऑफ दिस थिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रूफ. I'm sorry friends, after some time there is a type of break. The type of break is that this camera records only videos of 22 minutes. So I have to regularly check whether that 22 minutes have not finished. Because if these 22 minutes are finished and I don't have a look at the watch, then this, at times this happens that I'm just go on teaching and writing on the board and nothing is recording. So for that reason I need to check it for after some times. So फ्रेंड्स, अब मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा. एरिया निकालने के लिए सबसे पहला मैं स्टेप क्या करूंगा, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, ये डायगोनल ड्रॉ की है मैंने, BD. अब इस डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं. एक तो ABD ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक BDC ट्रायंगल नजर आ रहा है. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन अ डायगोनल, दिस DB डायगोनल. After drawing this DB diagonal, I can see two triangles. What is the triangle? ABD triangle, BDC triangle, BDC triangle. Okay, so obviously the area of this trapezium ABCD will be equals to area of triangle ABD plus area of triangle BDC. Just write it. यानी इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा ABCD का एरिया. What is the area of ABD? क्या है इसका एरिया? ABD का एरिया लिखते हैं. This is 1/2 into base into this height. Okay, this triangle ABD, 1/2 into base into height. So 1/2 into AB into height H. Plus BDC 1/2. What is the base here? DC is the base here. And what is the height here? The same H. So 1/2 into DC into H. तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ा. कौन कौन से वो दो ट्राइंगल्स थे? एक तो ट्राइंगल ABD था, दूसरा ट्राइंगल क्या था? दूसरा ट्राइंगल BDC था. और इन दो ट्राइंगल्स में तोड़ने के बाद मैंने एक चीज देखी है कि जो ABD ट्राइंगल है उसके लिए बेस क्या है? AB है. ठीक है, तो इस ABD ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस यानी AB इंटू हाइट यानी H. लिख दिया यहाँ पे ABD का एरिया. सिमिलरली इस BDC के लिए क्या लिखा? 1/2 इंटू बेस. बेस क्या है? CD है, DC है, लिख दिया. DC बोलो या CD बोलो, इंटू हाइट तो वही है, सेम है. तो ये हो गया. अब इसमें आपको 1/2 कॉमन दिख रहा है, H कॉमन दिख रहा है दोनों में. Now in these two figures you can see 1/2 common and H common in both the two figures. So what I'm going to write here, 1/2 H and within bracket AB plus DC, and you can write DC as CD also. This is similar to this formula, hence proved. Okay, this is similar to this formula, and this is the formula written in all the books of the area of a trapezium. So I'm sure now you are getting an idea that how this formula comes. So friends, ये formula है जो किताबों में हर वक्त आपके सामने लिखा रहता है. ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है. आई होप कि अब इस फॉर्मूले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पहली चीज मैंने आपको बताई है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजियम. ये पहला एप्लीकेशन है. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग पॉलीगन्स खत्म करने के बाद सर्कल्स खत्म कर लेंगे तो हम डिटेल में कुछ लगभग 50-60 क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री एज अ होल के, जिसमें मैं बहुत टफ क्वेश्चंस टेकअप करूंगा हर लेवल के. तो उसमें फिर इस तरीके की सारी चीजें आपकी रिविजिट होगी. सो फ्रेंड्स, आफ्टर फिनिशिंग दिस थिंग and after finishing the polygons and circles, I will be take up a whole consolidated exercise of the whole of geometry,
And in that case, I will take up some very tough questions of all the subjects. And in that, questions of trapezium will also be done. And some questions of trapezium around 1 or 2 will be covered at the end of this lecture or at the start of the another lecture, next lecture. दिस इज द केस इन फ्रंट ऑफ अस फ्रेंड्स. ये हमारे सामने एक केस बनाया मैंने. अगेन आपको दिख रहा है कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम है. साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि ABCD से ट्रेपेजियम. और इस ट्रेपेजियम में यार आपको ये दिख रहा है कि यार मैंने एक बीच में एक लाइन खींची है EF. मैंने आपको कंडीशन दी थी कि AB इज पैरेलल टू CD है. और ये जो EF खींची है ये मैंने CD और EB दोनों के पैरेलल. ऑब्वियस बात है ये CD CF की EF लाइन जो मैंने खींची है किसी एक के भी पैरेलल हुई तो दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगी. तो मैं लिख दूंगा कि ये EF के भी पैरेलल है. ठीक है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है. और मुझे एक चीज बताइए मैंने, ये जो पॉइंट E है, ठीक है, ये जो पॉइंट E है, इट इज इंटरसेक्टिंग DA इन द रेशियो m:n. यानी ये पॉइंट E DA को m:n के रेशियो में बांट रहा है. तो एक लॉजिक से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट F है ये भी C और B को m:n के रेशियो में ही बांट रहा होगा. ठीक है. सो फ्रेंड्स, इफ आई एम सेइंग दैट दिस लाइन पॉइंट E इज intersecting DA in the ratio of m:n, then by that logic I can also say that this point F is intersecting C and B also in the ratio m:n. This is just an extension of similar triangles. I am not going to explain why this is happening. If this is the fact, this is also the fact. Why? Because EF is a parallel line. Now, my first question to you, my very first question to you is that what is the length of EF? My question is, what is the length of EF? Okay, in terms of M and AB and CD. What is the length of EF in terms of M and AB and CD? Let's calculate it. I'm again going to draw a line. Suppose this time I'm going to draw this line, BD. Okay, तो मैंने एक डायगोनल फिर से ड्रॉ कर दिया है. DB कह लीजिए, BD कह लीजिए. और मुझे पता क्या करना है, मुझे इस EF की वैल्यू निकालनी है जो बीच में मैंने पैरेलल खींची. किसके टर्म्स में निकालनी है? AB के टर्म्स में निकालनी है, CD के टर्म्स में निकालनी है, M के टर्म्स में निकालनी है, N के टर्म्स में निकालनी है. ठीक है. So friends, I drew a diagonal BD. Okay, this is m:n, m:n. Now what is my challenge? I have to find out the value of EF. I have to find out the value of EF. So first I'm going to look at the triangle ADB. Okay, triangle. Now in this triangle ADB, I suppose this point as G, this intersection point. So G is the intersection point of EF and DB. G is the intersection point of EF and DB. Now you can see that this in this triangle ADB, E is the intersection point of DA and EF, and G is the intersection point of DB and GF. And we know that this EG is parallel to AB. This EG is parallel to AB. So we can say that this EG upon AB, this EG upon AB will be equals to ED upon AD, which equals to ED upon AD, which becomes M upon N plus N. This I have written directly. तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया, ट्राइंगल ADB को, ये मैंने लिखा. इस ट्राइंगल ADB में आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइन EG है बीच की, ठीक है, ये जो लाइन EG है दिस इज पैरेलल टू AB. ये लाइन EG AB के पैरेलल है. क्यों है? क्योंकि तो कंडीशन में दिया है कि पूरी लाइन EF पैरेलल AB के है, तो ये EG भी AB के पैरेलल होगी. तो अगर ये EG AB के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल DEG एंड ट्राइंगल ADB, they both will become similar to each other. Why? Because angle D is common, and as these two lines are parallel,
दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बात कर चुका हूं। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बात कर चुका हूं, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने लिखा कि EG ये अपॉन AB, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड से दो सिमिलर ट्रायंगल्स की, ये हो जाएगा ED अपॉन AD के, ED अपॉन AD। तो ED का प्रोपोर्शन क्या है M और AD का प्रोपोर्शन क्या है M+N। चूंकि रेशियो की बात हो रही तो मैं सीधे सीधे M अपॉन M+N लिख सकता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज। अब मैं इस AB को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो अगर इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ से मिटा दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू AB। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन बनी है और हमको EG मिल गया है, ठीक है। So this is the first equation form and we have found out the value of EG in terms of M, N and AB. Next comes GF. I have to calculate the value of GF. For this I am going to consider the triangle BDC. BDC. Now in this triangle BDC, you can see that this line GF is parallel to DC. This line GF is parallel to DC. So you can say that triangle GFB is similar to triangle BDC. Why? Because angle B is common, and as this line is parallel to this line, so this becomes corresponding angles and this becomes corresponding angles. So all the corresponding angles become of the two triangles become equal. So obviously the ratio of the corresponding sides will also be equal. So friends, मैंने क्या किया कि जो ट्राइंगल BDC था, मैंने देखा कि इस ट्राइंगल BDC में जो GF लाइन है ये DC के पैरेलल है। तो अगर ये GF लाइन DC के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग होने की वजह से। सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग होने की वजह से, और बी तो कॉमन है ये एंगल इन दोनों में। तो उससे होगा ये कि ट्राइंगल GFB और ट्राइंगल BDC आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी तो मैं GF के लिए कुछ फॉर्म बना के लिख सकता हूँ। देखता हूँ मैं क्या लिखता हूँ। आई विल राइट GF अपॉन DC। GF अपॉन DC इज इक्वल्स टू BF अपॉन BC। BF अपॉन BC, BF कितना दे रहा है, N प्रोपोर्शन दे रखा है, और P और BC क्या हो जाएगा, N+N या M+N। तो मैं क्या लिख दूंगा, N अपॉन M+N। यानी in this thing, as these two triangles, this smaller triangle and the whole triangle have become similar to each other, in this case the ratio of GF is to DC will become the ratio of BF is to BC. BF is represented by N proportion and full BC is represented by M+N proportion, so it will become N upon M+1. I wrote it here. I'm going to rub DC from this side, so DC comes here and this becomes equation number 2. Okay, and what I have to find out, I have to find out the value of whole line EF. This was my challenge. In order to find out the value of whole line EF in terms of AB, CD and M and N, I'm going to add equations number 1 and 2. यानी मेरा चैलेंज क्या था, मुझे ये पूरी EF की वैल्यू पता करनी थी M, N के टर्म्स में, AB और DC के टर्म्स में। तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ दूंगा सिंपली। जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, EG प्लस GF, EG प्लस GF, उसको मैं सीधे सीधे EF लिख रहा हूं, एंड M by M+N AB प्लस N by M+N DC। ये एक फॉर्म बन के आया आपके सामने। This is a form that we have got by calculating the value of EF in terms of MN, AB and CD. This is a form that if you are going to solve it by yourself for 4 or 5 times, you are going to learn it. तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है, जब आप इसको 4 या 5 बार खुद से सॉल्व कर लेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स बना के, तो आपको ये रट जाएगा। कुछ नहीं किया है, ये EF में क्या किया, पहले इस टर्म को लिया, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, तो इस EG को इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो AB से मल्टीप्लाई किया और प्रोपोर्शन क्या लिखा, ऊपर वाले का पूरे से। सिमिलरली जब इस ट्रायंगल में आया तो इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, इस ऊपर वाले और पूरे का रेशियो से। ठीक है, तो हमको इस तरीके का फॉर्मूला मिला। Now in this, if I ask you a question that if this E and F drawn, they cut AD and BC at midpoints, यानी ये E मिड पॉइंट हो जाए इसका, FB इसका मिड पॉइंट हो जाए, किसका किसका, AD और BC का, तो ऑब्वियस बात है M:1 1:1 के रेशियो में आ जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, AB plus CD/2। So friends, what I'm saying that if in any case it is being written to you that this line E is the midpoint and this point E is the midpoint, this point F is the midpoint, and we join a line EF, so obviously in that case that EF is parallel to these two lines, and in additional
This m is to n will become 1. So if you are going to substitute the value of m and n as 1 is to 1, you will get it as AB plus CD by 2 or AB plus DC by 2. Okay? And then we said this middle line will be equals to this line plus this line divided by 2. The average of these two lines. So this was one more observation relating to trapezium which we have solved. So friends, for the time being the theory of trapezium is finished. Some more relevant forms of it we will look that इन एसोसिएशन विद क्वेश्चंस. कुछ और इसके रिलेटेड अगर कुछ फॉर्म्स होंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आगे. फिलहाल के अभी हम ट्रेपेजियम को खत्म कर रहे हैं. और अब हम पहुंचेंगे एक बहुत ही माइनर फिगर पे जिसका नाम है काइट्स. ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो काइट्स के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कभी कभी एक वर्ड आ जाता है काइट्स, तो देख लेते हैं कि क्या चीज है ये. एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने. This is a figure drawn in front of you. तो फ्रेंड्स ये एक फिगर आपके सामने ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है. इसमें मैंने बता रखा है कि ये जो AB साइड है ये AD साइड के बराबर है. सिमिलरली ये जो BC साइड है ये CD साइड के बराबर है. दिस BC is equals to CD. I'm really sorry. This BC is equals to CD. ये BC CD के बराबर है. फिर मैंने बताया कि ये जो BO है ये OD के बराबर है, यानी ये वाली जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल की ये आपस में बाइसेक्ट हो रही है. लेकिन ये जो दूसरी डायगोनल है AC, ये O पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो AOC के बराबर नहीं है. और जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज परपेंडिकुलर. यानी डायगोनल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है. सो फ्रेंड्स, इन दिस quadrilateral you can say that this line AB is equals to this line AD, then this line BC is equals to this line CD here, then this diagonal BD is intersected at O, so BO becomes equals to OD, then this diagonal AC is intersected at O but AO is not equals to OC. So friends, and the diagonals AC and BD intersect each other at right angles. So such a type of figure, basically this is said as a kite. This is said as a kite. इसकी कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये कहीं अगर क्वेश्चन में एक वर्ड आपके सामने आए कि काइट, ठीक है, तो काइट ये है. सो व्हेन द पॉइंट इज कि अगर इफ समवेयर इन अ क्वेश्चन अ वर्ड लाइक दिस काइट कम्स इन अ क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेटर्स और एनी अदर क्वेश्चन, सो दिस इज अ काइट. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई टोल्ड यू दिस. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग ऑन टू मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक on which numerous questions are asked, that is parallelogram. It is a very important topic, parallelogram, and this we are going to look in a bit of detail. तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है पैरेललोग्राम. ये आपके सामने मैंने एक मॉडल पैरेललोग्राम बना दिया है ऐसे, ठीक है. अब पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. तो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. ये हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी. तो इसमें क्या नया देखा? व्हाट्स न्यू इन दिस? इन a square also we have seen that the opposite sides are parallel and equal. In rectangle also we have seen that the opposite sides are parallel and equal. So अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी चीज है जो एक पैरेललोग्राम को और एक स्क्वायर में या एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में डिफरेंस करती है,
So friends, if I ask you a question that what is the very first quality that differentiates between a parallelogram and a square and a parallelogram and a rectangle is कि यार ये जो एंगल बन रहा है पैरेललोग्राम की दो साइड्स के बीच में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो. सो फ्रेंड्स, the angle that is found between two adjacent sides of a parallelogram, it is not necessary that it is a 90 degree angle. तो इस लॉजिक से मैं क्या कह सकता हूँ? इस लॉजिक से मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम है, जो एक रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम है, बट एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है या एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है ये नहीं कहा जा सकता. सो फ्रॉम दिस लॉजिक फ्रेंड्स, आई कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, but whether a parallelogram is a square or whether a parallelogram is a rectangle, this cannot be said. ठीक है, यानी कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के अंदर पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टी है, बट पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि नहीं सारी, ये नहीं कहा जा सकता. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स के बीच में जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट द एंगल फाउंड बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री. इट कैन बी मोर देन 90 डिग्री, इट कैन बी लेस देन 90 डिग्री. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. That is, angle A opposite to is C. Angle A is equals to angle C. Angle B, angle D. Opposite angle B is equals to angle D. Second very important property. How this property came? ये property कैसे आई? देखते हैं. ये दो पैरेलल लाइंस खींची हुई हैं, ये तो पैरेलल लाइंस खींची हुई है. ओके, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की मदद से बताया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में जुड़ के 180 डिग्री होगा. सिमिलरली ये एंगल आपस में जुड़ के 180 डिग्री होगा. सिमिलरली ये इससे जुड़ के 180 डिग्री बनेगा और ये इससे जुड़ के 180 डिग्री बनेगा. तो अगर ये और ये जुड़ के 180 डिग्री मिल रहे हैं और ये जोड़ के 180 बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, क्योंकि इफ दिस इज D and D plus A is 180 and D plus C is 180, so obviously A plus A is equals to C. Similarly, if this A plus B is 180 and similarly if this B plus C is 180, so obviously you can say that this angle A is equals to angle C. तो फ्रेंड्स, इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सबसे पहली क्लास में जब इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ाया था ज्योमेट्री में, तब मैंने आपको बताया था कि जब इस दो पैरेलल लाइंस को कुछ ऐसी ट्रांसवर्सल्स काटती हैं, ठीक है, और अगर वो ट्रांसवर्सल्स भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये तो पहली बार पता चलेगा कि ये जो ट्रांसवर्सल इसके जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. तो ऑब्वियसली बात है, ये भी दोनों पैरेलल और स्पेस ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये दोनों का भी सम एक दूसरे के साथ जोड़ के 180 होगा. तो अगर एंगल D एंगल A के साथ जोड़ के 180 बना रहा है और एंगल D एंगल C के साथ जोड़ के 180 बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यार, ये A और C आपस में बराबर होंगे. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इस B को देखें तो B A के साथ जुड़ के 180 डिग्री बना रहा है और B और C के साथ जुड़ के 180 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब दोनों साथ जुड़ के 180 डिग्री बना रहा है B, तो A और C आपस में बराबर होंगे और इसी लॉजिक से B और D भी आपस में बराबर होंगे. ठीक है, ये फ्रेंड्स बहुत बेसिक चीज है, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस लेवल ऑफ माय क्लासेस, आई हैव टेकन ऑलरेडी 10 to 11 classes. Some you can say around 6 to 7 hours of classes I have taken in geometry, even more than that. तो इतनी क्लासेस लेने के बाद आपको इतना तो समझ में आना चाहिए खुद से. अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत टेंशन की बात है. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक क्या है कि अभी तक मैं आपसे 7-8 घंटे क्लासेस ले चुका हूँ ज्योमेट्री, शायद ज़्यादा की भी ले चुका हूँ. तो जब इतनी क्लासेस में ले चुका हूँ, लगभग 10 घंटे की हो गई हैं, तो अब से आपको अब इतना तो समझ में आना चाहिए, इतनी तो आप खुद से भी मेहनत कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है. ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं डायगोनल्स की. मान लीजिए मैंने इसका डायगोनल बनाया, ठीक है, ये एक डायगोनल बनाया मैंने पैरेललोग्राम का. ओके, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी अगर ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि दिस AO इज इक्वल्स टू OC. सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि OB इज इक्वल्स टू OD. ठीक है, तो ये एक और चीज हुई फ्रेंड्स कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं इनकी, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं, जवाब है जरूरी नहीं है.
So friends, if I say to you that whether the diagonals of a parallelogram are bisecting each other perpendicularly, it is not mandatory that the diagonals of a parallelogram bisect each other perpendicularly. It is not mandatory. ये जरूरी नहीं है कि एक पैरेललोग्राम्स की दो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको अगली प्रॉपर्टी क्या बताई कि भाई डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रही हैं पर परपेंडिकुलरली कर रही हैं, ये नहीं कह सकते। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दिख गए। ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल दिख गई आपको, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया देखते हैं इसका। Let us see at the area of this parallelogram. This is the base AB. You can see a triangle ADB and you can see a triangle DCB. Okay, you can see a triangle ADB, you can see a triangle DCB. This AB, if I suppose it as x, then this DC is also equals to x. As I have already told in the first that opposite sides are equal. So friends, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो साइड AB है ये x है तो ये DC भी x होगी, क्योंकि भाई अपोजिट है पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. So friends, if I have to calculate the full area of this parallelogram, I need to add the areas of triangle ADB and area of triangle DBC. So in this case, what is the area of triangle ADB? 1/2 x into height. And what will be the area in the case of triangle BDC? It will be also 1/2 x into height. So you can say it is 1/2 x into height plus 1/2 x into height. So it becomes x into height. यानी कि base into height. तो इस हिसाब से हम लोग फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल ABD का एरिया 1/2 बेस जो कि x है इनटू हाइट रखें और इस ट्राइंगल BDC के एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस x इनटू हाइट हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 XH प्लस 1/2 XH क्या बन जाएगा, XH बन जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, AOP लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ये एक और प्रॉपर्टी दिखी हमको पैरेललोग्राम्स की। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए पैरेललोग्राम है। Suppose this is a parallelogram, this is ABCD, and I suppose this has theta. Okay, I suppose this has theta. So this will also become theta. Okay, and I suppose this is length x, this is length y. So this will also become length x, and this will also become length y. Fine. तो फ्रेंड्स, अगर मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू ABCD. आई सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल as this is a property of parallelogram, so this will also become theta. Okay, so if this is theta, this also becomes theta. If this is x, so this becomes x. If this is y, so this becomes y, because opposite sides are equal and parallel. So in this case, the area of this parallelogram will be this triangle ABD plus triangle BDC. तो ये इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ABD का एरिया और BDC का एरिया। लेट्स सी कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो यार आप इस ABD का एरिया में कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 1/2 XY sin थीटा, 1/2 XY sin थीटा, ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। और सिमिलरली इसका एरिया कैसे लिखूंगा मैं, इसका भी कुछ ऐसे लिखूंगा, 1/2 XY sin थीटा। सेम हो गया, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा XY sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा मुश्किल नहीं, ये क्या बन जाएगा XY sin थीटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, AB एक लेंथ इंटू AD दूसरी लेंथ इंटू sin थीटा। सो व्हाट डज ये इसका फिफ्थ है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया AOP, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू adjacent sides of a parallelogram and into sine of the included angle। यानी कि एक अगर पैरेललोग्राम को मुझे एरिया निकालना है तो इससे किसी भी दो साइड्स का प्रोडक्ट करिए और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो उसका साइन कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। अब क्या ये फार्मूला आपस में बराबर है? क्या ये फार्मूला इस फार्मूला के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है?
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये परपेंडिकुलर आपको दिखी, ठीक है। अब आप साइन थीटा निकालिए, इसको एच मान लीजिए, ठीक है, साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, एच, हाइपोटेनस क्या है, वाई, ठीक है। तो ये एच कितना निकल के आ जाएगा, वाई साइन थीटा, और इस वाई साइन थीटा की जगह अगर आप एच पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू एच, और एक्स इंटू एच क्या है, ये बेस ए बी इंटू हाइट, जो मैंने यहां पे लिखा है, ये बेस ए बी इंटू हाइट। So friends, I just tried to prove that this formula is equivalent to this formula because this AB into AD sin theta XY sin theta. So I just draw a perpendicular H and I calculated this angle, sine of this angle. So it becomes perpendicular by hypotenuse, perpendicular is H, hypotenuse is Y. So it becomes Y sin theta. So I placed, in place of this Y sin theta as H, so it becomes X into H. What is X? X is base. What is H? H is height. So it becomes base into height. So once again this formula is proved. Okay, so this is, you can say, the fifth formula or property of a parallelogram. Some more formulas are coming. So friends, total 5 formulas I have told you. Okay, now I am going to move forward, and there are still many things that are left to be proved in parallelograms. Now let us have a look what are those things. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 5 चीज़ें आपको टोटल बताई हैं, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इसमें हम लोग को डिस्कस करनी बची हैं, उनको देखते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इफ आई से टू यू दैट इफ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम इनसाइड अ सर्कल, ओके, इफ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम इनसाइड अ सर्कल, देन दैट पैरेललोग्राम विल डेफिनेटली बी अ रेक्टेंगल। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्कल के अंदर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। यानी पैरेललोग्राम इन अ सर्कल इज रेक्टेंगल, वन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल के बाहर मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, इफ आई से टू यू दैट इफ आई एम ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर्कल के बाहर बना रहा हूं, देन दैट पैरेललोग्राम will be a rhombus. Okay, parallelogram outside or basically circumscribing a circle is rhombus. I just hope that you are getting that I am writing rhombus. तो फ्रेंड्स क्या बताया मैंने आपको कि अगर एक सर्किल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाया तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर मैंने एक सर्किल के बाहर एक पैरेललोग्राम बनाया तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। सो फ्रेंड्स आई टोल्ड यू 2 थिंग्स, ठीक है। द 5 प्रॉपर्टीज आई हैव टोल्ड यू नाउ। 6 प्रॉपर्टी इज दैट इफ एनी पैरेललोग्राम इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्किल देन इट्स डेफिनेटली अ रेक्टेंगल। इफ एनी पैरेललोग्राम इज ड्रॉन आउटसाइड अ सर्किल टचिंग all the 4 sides touching the circle, then that parallelogram is a rhombus. Now what is the difference between a parallelogram and a rhombus? एक पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क होता है? पैरेललोग्राम और रोम्बस में केवल एक फर्क होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में बराबर है। मैंने आपको ये बताया था कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड्स हो सकता है आपस में लेंथ में बराबर ना हो। आई टोल्ड यू दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन पैरेलल, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, दे मे बी डिफरेंट इन लेंथ, बट इन अ रोम्बस the adjacent sides are equal in length and rest all properties of parallelogram are applicable on rhombus. रोम्बस को भी हम डिटेल में देखेंगे। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी अभी और बची तो वो देख लेते हैं। One more property of parallelogram is left here. Let us finish it first and then we will move on to rhombus. Okay. Suppose a parallelogram. Okay, one more property of parallelogram. it is just coming on and on and on. There are many properties of parallelogram and just come to my mind. एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। मान लीजिए ABCD है, ठीक है, और मैं एक ऐसी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। आई वुड ड्रॉ ऑन डायगोनल AC। तो ये डायगोनल AC जो 2 ट्राइंगल्स बना रही है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एक तो ACD बन रहा है, एक ट्राइंगल ACB बन रहा है।
ठीक है, तो ये जो डायगोनल दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, एंड इन दिस पैरेललोग्राम ABCD आई एम ड्राइंग अ डायगोनल AC. Now this diagonal AC is dividing this parallelogram in two congruent triangles. Now we can say that this triangle ABC is congruent to triangle ACD. Similar, by similar logic, अगर मैं एक ऐसी डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये डायगोनल BD इसको दो ट्राइंगल से बांट रही, एक तो ट्राइंगल ABD है, एक ट्राइंगल BDC है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी when this diagonal BD is bisecting this, you can say parallelogram, then the triangles ABD is congruent to triangle BDC, and it is not difficult for you to think this, यार, ठीक है। Obviously this angle and this angle is equal, this angle is corresponding angle, okay. Similarly this angle is also which one? This angle is also corresponding angle. This is equals to this. This is equals to this, and this is equals to the opposite angle. So obviously the triangles will become congruent. तो आपको समझ में आ गया कि फ्रेंड्स जो डायगोनल्स हैं वो एक पैरेललोग्राम को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बांट देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक डायगोनल एक टाइम पे दो कॉन्ग्रुएंट बनाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दो ट्रायंगल मिलकर चार कॉन्ग्रुएंट बना देती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये दो ड्रॉ किए हुए चार ट्रायंगल बने और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन हाँ एक टाइम पे एक खींचा, क्या कर रहा हूं यार, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली एक टाइम पे दूसरा खींचा ऐसे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दिस वाज द 8th प्रॉपर्टी, ओके। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द 9th प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. Going to finish it a bit fast. ABCD, two diagonals drawn. Okay. The property is something like this: AC square plus BD square. One diagonal square plus another diagonal square is equals to square sum of the square of all sides. BC square, CD square, DA square. What I have done, friends, I have added the squares of the two diagonals. First diagonal AC square plus second diagonal BD square is equals to sum of the squares of all sides of the parallelogram. So AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equals to sum of the square of the diagonals. Now how I am going to prove that? The biggest point is how to prove it. So I am going to prove it. Suppose this angle is theta. Okay, so this angle will be theta, and as these two lines are parallel lines, this angle will be 180 minus theta. तो फ्रेंड्स अब तो मैंने क्या देखा कि ये प्रॉपर्टी मैंने बताई कि भाई जितने भी डायगोनल्स हैं आप डायगोनल्स के स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। और जब आप डायगोनल्स के स्क्वायर्स को जोड़ेंगे तो उसके बाद वो जो वैल्यू होगी वो उस पैरेललोग्राम की जब आप सारी साइड्स के स्क्वायर को जोड़ देंगे उसके बराबर आ जाएगी। इसको प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे कि पहले तो मैंने इस एंगल बी को थीटा मान लिया है, और जैसे कि ये BC लाइन और AD लाइन आपस में पैरेलल, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इस थीटा की मदद से मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। ट्राइंगल ABC का कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपका। या फिर डू वन थिंग, ट्राइंगल ABC का आप एरिया मत दिखाओ, मैं इसमें कोसाइन रूल लगा रहा हूँ। कोसाइन रूल मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB BC इंटू कॉस थीटा। ये कोसाइन रूल है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्राइंगल्स में, तो मैं इस कोसाइन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB BC कॉस थीटा, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यही रूल मैं इसमें भी लगा रहा हूं, ये 180 माइनस थीटा है, सो इट विल बी स्लाइड्स इंक्लूडिंग इज आर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB AD माइनस BD स्क्वायर, सॉरी माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB BD 2AB, it is AD, I will say, cos of 180 minus theta, this will be second equation.
सो फ्रेंड्स हमको ये दो इक्वेशन मिली है। पहले तो मैंने इसमें कोसाइन रूल लगाया ट्रायंगल एबीसी में। तो जब ट्रायंगल एबीसी में कोसाइन रूल लगाया तो पहला फॉर्मूला बना, क्या बना, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस थर्ड AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा, ये लिखा है। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या बना है, ये बना है, इसमें इंक्लूडेड एंगल क्या है 180 माइनस थीटा है। तो उसमें आप क्या करोगे, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यहाँ लिखा है AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस ऑफ BD स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB इंटू AD इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा में क्या फर्क है। आप याद करिए, कॉस 180 माइनस थीटा किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या बदल जाएगा, ये 2AB AD cos 180 minus theta will change to minus 2AB AD cos theta. So friends, 180 minus theta lies in the second quadrant. ठीक है, second quadrant means this was 0 to 90, 90 to 180, second quadrant. So if it lies in second quadrant, in second quadrant cosine is negative. ये मैं trigonometry में बताऊंगा, this I will tell in trigonometry. So this 2AB AD cos 180 minus theta will become minus of 2AB AD cos theta, minus of 2AB AD cos theta. So I'm just rubbing it, and in place of it I'm writing 2AB AD cos theta, and before it I'm going to place minus. Okay friends, now one more thing I'm going to do. See this AD, what is this AD? This is AD, and opposite to it is BC. So you can say the length of AD and BC are equal. तो मैं देख रहा हूँ कि ये फ्रेंड्स AD लिखा है, AD के अपोजिट आप BC देख रहे हैं, तो AD BC आपस में बराबर है, तो आप इस AD की जगह BC भी पुट कर सकते हैं। पुट कर दिया मैंने, ठीक है, अब मैंने इन दोनों को पुट कर दिया है। अब एक काम करिए, ठीक है, इस AD स्क्वायर, ठीक है, इस ये जो आपको AD स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है, B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे आपको AB स्क्वायर नजर आ रहा है, इस AB स्क्वायर की जगह पे ये जो AB स्क्वायर है, ये AB के अपोजिट क्या है, CD है, ये AB के अपोजिट क्या है, CD है। तो मैं चाहे यहाँ पे AB स्क्वायर लिखूं, चाहे यहाँ पे CD स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं CD कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो चेंजेस किए मैंने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ रहा हूँ। I am adding equation number 1 and equation number 2. So the right hand side and right hand side will be added to each other. So in this right hand side you can say plus of 2 into AB into BC cos theta, और here you can say minus of 2AB into BC cos theta. तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे एक में तो प्लस है, एक में वही चीज माइनस है, दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिख दिया, इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, आपको नजर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. So this we got by adding to the LHS, and there are two terms in the negative, minus of AC square minus of BD square. So I added as minus of AC square minus of BD square. तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, देखा भाई दो पॉजिटिव, चार पॉजिटिव में थे, दो यहाँ दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। 4 terms were in positive, I added and wrapped it here, and 2 terms were in negative, AC square and BD square. So the negative terms minus of AC square minus of BD square, put it here, and the right hand side comes out at 0, because in the right hand side one was the same value in positive and another was the same value in negative. Just manipulating it, I get AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equals to AC square plus BD square, and this was the thing that I was trying to prove. तो फ्रेंड्स इसको मैनिपुलेट किया तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये AB BC CD DA आपको क्या दिख रहा है, ये चारों साइड्स दिख रही हैं आपको पैरेललोग्राम की, और ये AC और BD क्या है, AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। तो ये जो नया फॉर्म मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम्स में, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स मतलब मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको पैरेललोग्राम्स के सारे टाइप्स बता दिए। तो इन दिस लेक्चर मैं यहीं तक कंप्लीट कर पाऊंगा। इन नेक्स्ट आई विल टेक अप rhombus and then I will take up cyclic quadrilaterals, and after that I will move to circle. So friends अगले लेक्चर में rhombus लूंगा मैं, और फिर मैं cyclic quadrilaterals लूंगा, उसके बाद मैं circle में चलूंगा, ठीक है। So I hope you like the lecture.